Hello everyone, welcome back. We are here with our fourth part of chapter 4 of science, that is life cycle of plants and animals. Okay, so today this is our fourth part of video. ये हमारा फोर्थ पार्ट है वीडियो का. Okay, so in this video we will talk about life cycle of an ant. In the previous 3 videos we have discussed about life cycle of plants, butterfly and silk moth. Okay, so life cycle of butterfly and silk moth, they were very similar to each other. Now the life cycle of an ant, it is different from the life cycle of butterfly and silk moth. Okay, so today we will discuss about the life cycle of an ant, that what are the various stages in the life cycle of an ant. First is, so here is also there are 4 stages. There are 4 stages in the life cycle of an ant. So what is the first stage? The life cycle of an ant begins as an egg. सबसे पहले बेटा, in first stage there are eggs that are laid down by the adult ants. Okay, so legs are laid down and eggs are very small in size. कहते जो ये eggs होते हैं बेटा, ant eggs, they are very small in size and oval in shape. They are not round. They are not round in shape. They are oval in shape. Some of the eggs of ants are eaten by other ants of ant colony. कहते जो इन ants के eggs होते हैं बेटा, कई बार इन eggs को, इनमें से कुछ एग्स दे आर ईटन बाय द अदर एंट्स ऑफ एंट कॉलोनी. जो एंट कॉलोनी के अदर एंट्स होती हैं वो इन एग्स को ईट कर जाती हैं. समटाइम्स सम एग्स. ओके, सो basically what is there in the first stage, that eggs are laid down by the adult ant and they are very small in size and they are oval in shape like egg. Okay, so these are not round, these are oval in shape. Now next is second stage. An egg hatches into a worm shaped larva, that we already discussed in butterfly and silk moth na, that after some days a worm like creature hatches from the eggs, that is larva. ठीक है, अब वहाँ पे हम उनके लार्वा को क्या बोल रहे थे बेटा, बटरफ्लाई और सिल्क मॉथ के लार्वा को, दैट वाज कैटरपिलर. बट हेयर देयर इज नो नेम ऑफ द लार्वा ऑफ एंट्स. ठीक है, वी विल जस्ट सिंपली से इट लार्वा. Okay, so a worm-like creature hatches from the eggs, that is larva. Now here larva has no eyes or legs. यहाँ पे बेटा जो लार्वा निकलता है एग्स में से, it has no eyes, no legs. Okay, their primary function is eating and they depend on adults for food. यहाँ पे बेटा इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, जस्ट ईटिंग का, बिकॉज दे कैन नॉट सी, दे कैन नॉट मूव हेयर एंड देयर. सो फॉर फूड ऑल्सो दे डिपेंड अपॉन अडल्ट एंट्स. इनको खाना कौन ला के देता है, जो अडल्ट एंट्स होती हैं बेटा, वो अपने लार्वा को खाना ला के देती हैं. जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, ठीक है, तो उनको खाना का, उसको जब वो आफ्टर सम टाइम जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको कौन खिलाता पिलाता है, मदर. ठीक है, जो एक अडल्ट होते हैं या फिर कोई और होते हैं बड़े हमारे घर में. सो ऐसे ही जो इस लार्वा का बेटा टेक केयर कौन करता है, इनका अडल्ट एंट. ओके, सो दे डिपेंड फॉर फूड, दे डिपेंड ऑन अडल्ट्स फॉर फूड. ठीक है, अडल्ट एंट्स के ऊपर ये डिपेंड होते हैं फूड के लिए. एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टीन्यूस ईटिंग दे ग्रो रैपिडली इन साइज. कहते जब ये लगातार खाते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली ईट करते रहते हैं, देन दे रैपिडली, तो ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, दे ग्रो बिगर इन साइज, दे ग्रो रैपिडली इन साइज. ठीक है, जल्दी से ये बड़े भी हो जाते हैं. आफ्टर दैट नाउ दिस इज द थर्ड स्टेज. नाउ वी आर गोइंग टू एंटरिंग इन टू द थर्ड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज इज प्यूपा स्टेज. नाउ व्हाट इज देयर इन दिस थर्ड स्टेज, a fully grown larva
एंटर्स इनटू अ रेस्टिंग स्टेज कॉल्ड द प्यूपा. ऑब्वियसली ठीक है. अब ये जो लार्वा है when it fully grows, then it enters into a third stage, that is pupa. Okay, initially pupas are white but later their color change and they became dark. कहते हैं स्टार्टिंग में क्या होते हैं, जो ये प्यूपा होते हैं दे आर वाइट इन कलर, वो क्या होते हैं वाइट इन कलर होते हैं, बट आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम टाइम देयर कलर चेंज, इनका कलर चेंज हो जाता है और ये क्या बन जाते हैं, दे बिकम डार्क. इनका कलर क्या हो जाता है बेटा, डार्क हो जाता है. ओके, सो in the life cycle of butterfly and silk moth, what we have studied in the pupa stage, that there is a covering where the caterpillar hides itself. वहाँ पे क्या होती थी बेटा, प्यूपा स्टेज में एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती थी. ठीक है, बटरफ्लाई में हम उसको क्राइजैलिस बोलते थे और सिल्क मॉथ में ककून. बट हेयर देयर इज़ नो कवरिंग आउटसाइड द लार्वा. ठीक है, लार्वा अपने आप को कहीं पे भी हाइड नहीं करता. देयर इज़ नो सच कवरिंग इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंट. जस्ट लार्वा एंटर्स इनटू द थर्ड स्टेज दैट इज कॉल्ड प्यूपा. हेयर लार्वा डू रेस्ट फॉर सम डेज and initially it is white in color and after some times it becomes dark, it become dark. Okay, the pupa are similar to adults, however their legs and antennas are fold. कहते हैं इस स्टेज में ये एक अडल्ट एंट ही बन जाता है, अडल्ट एंट की तरह ही बन जाता है. बट क्या फ़र्क होता है यहाँ पे, वट इज़ द डिफरेंस, कि इसके जो एंटीनाज और लेग्स हैं दे आर फोल्डेड, स्टिल दे आर फोल्डेड. ओके, वो क्या है बेटा, अभी फोल्डेड है, दे आर नॉट गेट ओपन्स, मतलब वो अभी फोल्डेड है. वो एक अडल्ट एंड में तो ग्रो हो गया बट स्टिल देयर एंटीनाज एंड जो इनकी लेग्स हैं दे आर फोल्डेड. बट आफ्टर सेवरल वीक्स, बट कुछ हफ्तों के बाद, ठीक है, देयर एंटीनाज एंड लेग्स विल ग्रो एंड दे विल emerges आउट एज एन अडल्ट एंट. ठीक है, आफ्टर सम वीक्स दे विल emerges out as an adult ant from the pupa stage. So these were the 4 stages in the life cycle of an ant. Again I am repeating, first of all, first stage where adult ants lays down the egg. ठीक है, egg lay down करती हैं adult ants. After that, after some days a worm like creature hatches from the pupa, that is called larva. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं. और उसके बाद then larva depends upon adult ants for food. ठीक है, because it has no eyes and legs initially. After that it enters into the third stage called pupa stage. Here it is white in color and after some days it turns into dark, it become dark in color. ठीक है, but here pupa is similar to adult. pupa जो है adult ant से similar होता है, but here its legs and एंटीनाज आर फोल्डेड. बट आफ्टर सेवरल वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, इट फुली ग्रोज एंड इट emerges आउट एज एन एडल्ट एंट, इट emerges आउट एज एन एडल्ट एंट. सो दीज आर द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंट. नाउ बट देयर इज़ वन ट्विस्ट, यहाँ पे एक ट्विस्ट है बेटा. एडल्ट एंट्स जो होती हैं, इट कैन बी ऑफ एनी, it can be adult ants beta are of 3 types here. adult ants are of 3 types. okay, तो जब प्यूपा में से adult ant निकलती है तो इनमें से कोई भी हो सकती है adult ant. okay, it can be queen, it can be queen, it can be male and it can be worker. इट कैन बी वर्कर एंट. तो इन तीनों में से कोई भी एंट बाहर आ सकती है फ्रॉम द प्यूपा. एंड नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अडल्ट एंट्स, वी विल टॉक अबाउट दैम. सो फर्स्ट इज क्वीन एंट्स, सेकेंड इज वर्कर एंट्स एंड थर्ड इज मेल एंट्स. एज यू कैन सी हेयर, क्वीन एंट, ठीक है, मेल एंट एंड वर्कर एंट. नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज 3 एंट्स. क्वीन एंट्स आर फीमेल एंट्स विद विंग्स. कहते जो क्वीन एंट्स है बेटा, ये फीमेल एंट्स हैं विद विंग्स. इनके क्या होते हैं बेटा, विंग्स होते हैं. और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि सिर्फ क्वीन एंट्स ही एग्स को ले डाउन करती हैं. दे ले एग्स एंड दे कैन लिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो क्वीन एंट्स है बेटा, दे कैन लिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड
क्वीन एंड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, दैट दे ले डाउन द एग्स, वो क्या करती हैं, एग्स ले डाउन करती हैं. नाउ सेकेंड इज वर्कर एंड्स. सेकेंड इज वर्कर एंड्स. यू कैन सी हेयर वर्कर एंड्स. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्कर एंड्स. वर्कर एंड्स आर ऑल्सो फीमेल्स. ये भी क्या है बेटा, ये भी फीमेल्स हैं, but they are smaller in size. They are smaller in size than the queen ants. You can see queen ant is bigger in size na, but worker ant is smaller in size than the queen ant, but both are females. Okay, now next is, now what is the function of worker ants. They perform several tasks such as building nest, gathering food and taking care of larva. अब बेटा जो वर्कर, नेम से ही पता चल रहा है, वर्कर एंड्स मतलब काम करने वाली एंड्स, जो काम करती हैं. क्या काम करती हैं, बिल्डिंग नेस्ट, ठीक है, मतलब अपना रहने के लिए छोटा सा नेस्ट बनाती हैं, फूड को गैदर करती हैं, फूड को इकट्ठा करती हैं फ्रॉम हेयर एंड देयर, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू द लार्वा, एंड दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द लार्वा. जो ये लार्वा होता है ये इसकी टेक केयर करती हैं. आई टोल्ड यू ना दैट दीज लार्वाज आर डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स फॉर फूड. तो इन लार्वा को कौन फूड ला के देता है, वर्कर एंड्स. कौन फूड देता है इनको, वर्कर एंड्स. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वर्कर एंड्स. नाउ थर्ड वन इज मेल एंड्स. थर्ड वन इज मेल एंड्स. ओके, सो मेल एंड्स ऑल्सो हैव विंग्स. जो मेल एंड्स हैं इनके भी विंग्स होते हैं. दे ऑल्सो हैव विंग्स. They only help in reproduction by mating with queens. So जो male ants है obviously you can recognize from the name male ants, मतलब ये male है, female ants नहीं है, ठीक है. So queen ant and worker ant, these both are female ants, and male ant means this is not a female ant, this is male ant. So इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, बाय मेटिंग विद क्वीन एंड्स. क्वीन एंड्स के साथ ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. एंड दे कैन लिव फॉर फ्यू वीक्स. और जो मेल एंड्स है बेटा वो कुछ ही हफ्तों के लिए ज़िंदा रह सकते हैं. आफ्टर दैट दे गेट डाइड. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडल्ट एंड्स. वन इज़ क्वीन एंड्स, वर्कर एंड्स एंड मेल एंड्स. क्वीन एंड्स जो है बेटा दे आर फीमेल एंड्स with wings, and their main function is to lay down the eggs, and they can live for a long period of time. Next is worker ants. worker मतलब काम करने वाली ants. They are also female ants, and their main function is for building nest, gathering food and taking care of larva. And जो वर्कर एंड्स होती हैं बेटा दे डू नॉट हैव विंग्स. उनकी विंग्स नहीं होती. यू कैन सी इन द पिक्चर. एंड नाउ थर्ड वन इज मेल एंड्स. मेल एंड्स का मेन फंक्शन क्या है बेटा, they help in reproduction by mating with queen ants, and they can live only for few weeks, ठीक है, कुछ ही हफ्तों के लिए ज़िंदा रह सकते हैं. आफ्टर दैट दे गेट डाइड. सो दिस वॉज द लाइफ साइकिल ऑफ एन ant. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बेटा. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. when you will read this from your books, really you will enjoy this life cycle. Really you will enjoy this life cycle. So please read this life cycle of an ant. So this was our today's video. In next video we will discuss about our last topic. This is our last topic, life cycle of a frog. So in that video we will discuss about our life cycle of a frog. So please read this life cycle of an ant. This is very interesting. So till then, bye bye everyone. We will meet in next video. Bye.